خدا کرے آپ کو آب کوثر نصیب ہو اماں. شکریہ میرے بچے. تو اب جب کہ تم سیراب ہو گئے ہو تو اٹھو اور اپنے گھر لوٹ جاؤ. تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے. میں کوفے میں غریب الوطن ہوں اماں. میرا کوئی گھر اور ٹھکانہ نہیں ہے. کوفہ اجنبیوں کا قاتل ہے بیٹا. اس 1000 چہرے والے شہر کیوں آئے؟ ہم کوفیوں کے بلاوے کے مہمان تھے. تمہارا نام کیا ہے؟ مسلم ابن عقیل. میرے سر پہ خاک. تم مسلم سفیر فرزند رسول ہو؟ کیا مجھے صرف آج کی رات اپنے گھر میں پناہ دے سکتی ہیں؟ صرف اپنے بیٹے بلال سے خوفزدہ ہوں، جو کہ ایک نااہل لڑکا ہے اور نیچ قسم کے لوگوں کے ساتھ میخاری کرتا ہے. رات سے لے کر فجر کے اذان تک میخاری اور عیاشی میں مصروف رہتا ہے. فجر کے قریب گھر آتا ہے مست و مدہوش حالت میں. ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ نہ سمجھ سکے. کیا ہوا حبیب؟ کیا کیا تم لوگوں نے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ گھروں پر مردے کی خاک اڑا دی گئی ہو. چیخ چیخ کر ہمارے گلے تھک گئے. دیوار سے تو آواز آئی مگر کوفیوں کے گھروں سے نہیں آئی. میں محل کے سامنے بھی گیا، کوئی نہیں تھا. جناب مسلم کہاں ہیں ابن سجا؟ نہیں جانتا حبیب، میں نہیں جانتا. جب میں آیا تو کوئی بھی نہیں تھا، نہ محل کے سامنے نہ مسجد کے اندر. یعنی تم ان کے ساتھ نہیں تھے اے ابن سجا؟ نہیں، تم گئے تو ہم بھی گئے گلی بند کرنے کے لیے، مگر کوفے کی زبان دراز عورتوں کو نہ روک سکے. مجبوراً ہمیں راستہ کھولنا پڑا. مجھے شرم آئی کہ خالی ہاتھ جناب مسلم کے پاس جاؤں. میں اپنے سر پہ خاک اڑانے گیا تھا مگر وہ بھی نہ کر سکا. جب آیا تو کوئی بھی نہیں تھا. جناب مسلم کوفے میں غریب ہیں حبیب، وہ یہاں اجنبی ہیں، معلوم نہیں کہاں گئے ہوں گے. لعنت ہو کوفہ اور کوفیوں پر. کوفہ عصیب ہے، کوفہ منحوس ہے، کوفہ جادو نگری ہے، کوفہ بزرگان دین کا قاتل ہے، کوفہ جانوروں کا شہر ہے. خود کو سنبھالیں حبیب، ہمیں جناب مسلم کو ڈھونڈنا ہوگا. آخر کیسے؟ کس محلے میں؟ کس قبیلے میں؟ تمام گلیوں میں سپاہی اور فوجی پھیلے ہوئے ہیں. جب تم آئے تو نہیں دیکھا. کیا ہوا حبیب؟ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے کوفہ اور کوفیوں سے گھن آ رہی ہے. وہاں جا رہا ہوں جو اس طرح آفت زدہ نہ ہو. حسین کوفی کی راہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. خدا کی قسم میں بھی اس کافرستان سے بیزار ہوں. رکو تاکہ نکلنے کا چارہ کر سکیں. چارہ کار نہیں ہے ابن سجا. مجھ میں رکنے کی اب سکت نہیں رہی. عاشق حسین دریا کا رخ کرنے جا رہا ہے.
चुप रहो बस, अब चुप रहो बस, अब तंग मत करो इब्ने अजल, मैं तुम्हारी तरह गया गुजरा नहीं। तुम्हारी नानी मेरे लिए दुल्हन लाने वाली है, बिल्कुल चांद सा चेहरा। खुदाया, कैसा गधा है ये, कम से कम एक ढंग की औलाद भी होती। बिलाल, बिलाल, कल रात में हर रात से पहले घर गया, दोस्तों ने बहुत जिद की कि रुक जाओ, थोड़ी सी और पी ले, कुछ ऐशो नौश कर ले। मैंने कबूल नहीं किया, बस उन लोगों की बातों से चिढ़ता हूँ, वरना मुझे इस शराब हराम की भी कोई परवाह नहीं है। जितना पिला लो पी लूंगा। मुझे डर है कि उस बूढ़ी औरत ने मेरी उठने की आवाज ना सुन ली हो और मुझे बद्दुआ ना दे दी हो। कहते हैं कि माँ की बद्दुआ जल्दी असर करती है। वैसे सलार साहब, खुदा ने चाहा तो इन दिनों में इंशाल्लाह शराब नोशी की इजाजत तो मिल जाएगी ना? शराब नोशी को खुदा ने हराम किया है माँ, इसकी कौन इजाजत दे सकता है? मैंने सुना है कि अमीरुल मोमिनीन यजीद बजाते खुद शराब और शेर वाले हैं। शराब पियो, मिंबर जलाओ, लेकिन लोगों को तंग मत करो। तुम्हारा मुंह हमेशा इतना ही गलत सलत चलता रहता है गधे। गलत इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अगर मुस्लिम को तुम्हारे घर में ना पाया तो फिर देखना क्या हशर करता हूँ। कैसी बातें कर रहे सलार, मैं उससे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि वो मुस्लिम है या नहीं। जैसी निशानी आपने बताई उनके मुताबिक तो वही होना चाहिए। बिलाल, बिलाल, कहाँ चले गए मनहूस लड़के? तुम तो हमेशा जोहर की नमाज तक सो रहे होते थे। आज सवेरे सवेरे किस जहन्नम में चले गए हो? घर का मुहासरा किया हुआ है इब्ने अकील। तुम्हारे पास राह फरार नहीं है। तलवार उठाई तो घर को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना देंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पर लानत है बिलाल, मनहूस बगैर बाप के शराबी लड़के। ये एक हाशमी है बिन कुरैश, अरब के शेरों के कबीले से है, अली और हमजा के खानदान से है। जब तक उसके हाथ में तलवार है बहुत मुश्किल है इस पर काबू पा सके। मैं मुस्लिम को मारना नहीं चाहता इब्ने अशश, उसे अमान दे दो, शायद कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो।
मर्द का बच्चा है जो मुझे एक घूंट पानी दे दे। इब्ने अकील, मैं इब्ने अशद हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं। अगर मजीद लड़ते रहोगे और हमारे आदमियों को कत्ल करते रहोगे तो अमीर खून के किसास के तौर पर तुम्हें भी कत्ल कर देगा। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं अपनी इज्जत की जबान देता हूं कि तुम्हारे लिए अमान नामा ले लूंगा। कोई बात करो मुस्लिम। मुझे मार दोगे या अमान दोगे? क्यों पूछ रहे हो? मैंने अमान के वादे पर तलवार रोकी है, वरना मैं तस्लीम ना होता। मैदान जंग में मारा जाना मेरे लिए ज्यादा बाइज्जत मंजिल थी। हाशमियों के सर उठाने से खुदा की अमान। असीरी की हालत में भी रजस ख्वानी करते हैं। ये लोग इल्तमास के लफ्ज को तो पहचानते ही नहीं। हम सिर्फ खुदा की बारगाह में इल्तिमास करते हैं। तो फिर खुदा से इल्तिमास करो, शायद वो तुम्हारी दुआ सुन ले और मुझे तुम्हारे कत्ल से रोक दे। खुदा से तलब मगफिरत करता हूं। मैंने कहा था ना, हाशमियों का गुरूर उन्हें खुदा के आगे भी इल्तिमास करने नहीं देता। तुम्हें कत्ल कर दूंगा मुस्लिम। मैं जानता हूं कि तुम इतने सखी नहीं हो कि अपने दुश्मन को बख्श दो। मैं अपने किसी ऐसे जानने वाले को वसीयत करना चाहता हूं जो इस वक्त यहां मौजूद हो। बिस्मिल्लाह। ऐ इब्ने साद, मेरे और तुम्हारे बीच रिश्तेदारी है। मैं तुम्हारे जरिए एक वसीयत करना चाहता हूं, एक राज की तरह। मैं कोई अच्छा राजदार नहीं हूं, मुझे माफ करो दो। ऐ पिसरे साद, मुजायका मत करो। ये बात मर्दानगी के खिलाफ है। तुम्हारा अजीज मौत के दहाने पर खड़ा है, उसकी वसीयत तो सुन लो। अगर उसकी वसीयत सुन लूंगा तो फिर मुझे उस पर अमल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। हरचंद के उस जैसे की वसीयत पर अमल करना जो कि मुर्तद है, सवाब भी नहीं और गुनाह भी नहीं। तुम्हारी गैरतमंदी और मर्दानगी बढ़ जाएगी इस तरह। वसीयत पे अमल करना आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो क्या? फिर भी उस पर अमल करने को मर्दानगी समझते हैं। अब तक तुमने उसकी वसीयत नहीं सुनी बंदे खुदा। अगर उसकी दरख्वास्त मेरे जाती मफादात के खिलाफ हो, पूरा कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसकी दरख्वास्त शरीयत मुकद्दस के खिलाफ हो तो अमल ना करना, उसका कुफ्फार अदा कर देना। वसीयत सुनाओ मुस्लिम। मेरे चचेदाद भाई हुसैन इब्ने अली को लिख दो कि कूफा ना आए, लौट जाए। मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म को दफना देना कि जमीन पड़ा ना रह जाए। मैं कूफा में 700 दिरहम का मखरूस हूं, वो अदा कर देना। मेरी सिरा और खुद को बेच के अदा कर देना।
जानते हो मुझसे क्या चाहता है? वो तुम्हें अमानतदार जानता है उमर। राजदार रहो। अमानतदार कभी खयानत नहीं करता। हर चंद के बाज औकात खयानतकार शख्स को अमीन बना दिया जाता है। खूब मुस्लिम, तुमने वसीयत कर दी। कोई और ख्वाहिश है? मैं प्यासा हूं, थोड़ा सा पानी दे दो। बिन हुरैस, इसे पानी दे दो, मगर उस प्याले में जिसमें हराम गोश्त जानवरों को पानी देते हो। वो मुर्तिद हो गया है और जिस चीज को मुंह लगाएगा वो शरअन नजस हो जाएगी। जी अमीर। मुर्तिद तो तुम हो कि बगैर किसास उस बंदा खुदा को कत्ल करते हो कि जिसका कत्ल करना हराम है। जो शख्स सिर्फ अपने गुस्से और सूए ज़न की बिना पर लोगों का कत्लेआम करता है वो मुर्तिद कहलाने का ज्यादा हकदार है। तुम जैसे शख्स की सांस और पसीना नजिस है जिसने अपने दिल को इब्लीस का घर बना लिया है। इब्लीस तो तुम हो कि नफ्स की ख्वाहिश की बिना पर खलीफा मुस्लिमीन पर खुरूज करते हो और वलीउल मुस्लिमीन पर तलवार उठाते हो और मुसलमानों के दरमियान तफरका पैदा करते हो। तुम्हारा मुर्तिद होना बिल्कुल मुसल्लम है। मैं तुम्हें खुदा की रजा के लिए कत्ल करूंगा, ना कि गुस्से और सूए ज़न की वजह से। खुदा की कसम, तुम झूठ की जड़ हो। अगर इस गिरोह के पास राई के दाने के बराबर भी खौफ खुदा होता तो तुम्हारे झूठ की गवाही देते। अफसोस, अफसोस के दुनियावी ताल्लुकात ने मुसलमानों को इतना गिरा दिया है कि उनमें इंसाफ, शुजाअत और ईमान भी खत्म हो गया है। हम एक गासिब खलीफा के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। हमने कैसर और कसरा जैसे शख्स के खिलाफ तलवार उठाई है। हमने निफाक नहीं किया, इत्तिहाद किया है। इराक के लोगों के 12,000 खतूत हमारे गवाह हैं। क्यों पानी नहीं पिया? मेरे मुंह का खून माने हो गया। देख लिया ना, खुदा भी तुम्हें पसंद नहीं करता। वो चाहता है प्यासे मरो। ये पानी मेरे लिए था ही नहीं, वरना खुदा की रहमत का दरिया बेकरां है। शायद प्यासा मरना मेरे जिहाद के अजर को पूरा कर देगा। तुम लोगों का खुदा के बारे में जो गुमान है वो तुम्हारी तरह हकीर है। खुदा को इंसान नुमा कोई चीज समझ रखा है क्या? अपने गुनाह की फिक्र करो मुस्लिम, खुदा की मार्फत अपने पास रखो। क्या तुम लोग ये गुमान करते हो कि खिलाफत में तुम लोगों का कोई हक है? गुमान नहीं है, यकीन है। सुन लिया आप लोगों ने भाइयों, सुन लिया? उमवी और अलवी के झगड़े की जड़ यही दावा है। जब देखो बहाने ढूंढते रहते हैं। अब दीन का क्या होगा, सुन्नत पैगंबर का क्या होगा, कुरान का क्या होगा, अहकाम दीन का क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये रसूल खुदा का सही और मुहक्कम कौल है। बिद्दत ले आया है। बिदत अलवियों का कोई विरासत का दावा नहीं है। इनका खिलाफत में हक है तमाम मुसलमानों की तरह। खिलाफत उम्मत के नेक, साले, मुकर्रब और मोमिन लोगों का हक है। खुदा की कसम, अली और उनकी औलाद उम्मत के मुकर्रब तरीन और बातकवा तरीन लोग हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। अली से पहले के खुलफा ने भी अली की दयानत, तकवा और इल्म की गवाही दी है। खामोश झूठे, अपनी झूठी बातों खुलफा से मंसूब करते हो। खुदा की कसम, तुझे ऐसे मारूंगा कि दीन के आगाज से लेकर आज तक किसी को भी इस तरह नहीं मारा गया होगा। हाँ, तुम वही हो कि वो बिद्दतें दीन में लेकर आओगे जो पहले कभी न थी। नामर्दाना कत्ल और आज़ा का कता करना और लाश को बरहना करना और घोड़ों से पामाल करवाना तुमसे कुछ भी بعید नहीं। कोई है जिसने इस मुर्तद से कोई जख्म खाया हो? मैं हूं अमीर, बुकैर इब्ने हुबरान आहमरी। ये वो जख्म है जो मुस्लिम इब्ने अकील ने मुझे दिया है। बुकैर,
اسے محل کی سب سے بلند جگہ سے گرا دو اور اس کے بدن سے اس کے سر کو جدا کر دو. جی امیر. چلو. سلامت رہو ابو اسحاق. تم بھی سلامت رہو خبر رساں کبوتر. آج کل کیا ایرانیوں کے افسانوں کے ملک سے مشابہت رکھتا ہے. اس کا نام ہی لینا کافی ہے تاکہ فوراً مد مقابل سامنے آ جائے. وعدہ پورا ہوا کیان؟ دیر تو نہیں ہوئی ہمیں؟ تاجیل اور تاخیر تمہاری نہیں تھی. تم جو بھی کر سکتے تھے تم نے کیا. کنایوں میں بات کر رہے ہو کیان؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ تنہائی چاہیے ابو اسحاق. کچھ ایسی خبریں ہیں جو صرف تمہیں پتہ چلنی چاہیے. قیام جناب مسلم ٹوٹ گیا ابو اسحاق. کوفی بغیرتوں کی طرح بھاگ گئے. جناب مسلم تنہا رہ گئے، مارے گئے. مارے گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر گفیوں کے تبلے پھٹ گئے ہوں بن کامل؟ غلط کیوں سوچتے ہو ابا الحدید؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا.
کل جب ہم الگ ہوئے ہیں میں ایک سانس میں دوڑا ہوں. عشاء کے وقت کوفہ پہنچا. سپاہیوں نے شہر کا راستہ بند کر رکھا تھا. نہر کے راستے گیا. میں نے مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر کو دیکھا. کوفے سے نکل چکے تھے. بظاہر سپاہی ان دونوں کا نہر کے ساحل تک پیچھا کریں گے اور وہ مجبوراً پانی میں کود جائیں. جناب مسلم کی بے کسی اور کھو جانے کی روداد میں نے ان لوگوں سے سنی. حبیب مسلسل ندامت کے آنسو بہا رہا تھا اور اس کا ورد زباں مختار تھا. میں کیوں؟ اسے غم تھا کہ انہوں نے تمہارے مشورے پر عمل کیوں نہیں کیا. مسلم اور حبیب کہاں گئے ہیں؟ مکے کی طرف. وہ دونوں مولا حسین کی خدمت میں جلد سے جلد پہنچنا چاہتے تھے. عجیب بدبخت ہیں. کتنے کمزور دل تھے یہ لوگ. وائے ہو قوم مزہج پر کہ غیرت و مردانگی کو بھی بیچ دیا. وائے ہو مزہج قبیلے پر کہ ان کا نام ڈوب گیا. کہاں ہے پکڑو اسے. کہاں ہے وہ غیرت مند مسلمان جو اپنے خون کی غیرت کا دفاع کرے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں کوفیوں. ڈوب مرو تم لوگ. خدا تم لوگوں کو ختم کر دے گے. فرزند رسول کو ایک بدکارہ کے بچے کے ہاتھوں بیچ دی. تم لوگ تو اس بات کے حقدار ہو کہ خدا قوم نوح اور قوم سمود کا عذاب تم پر نازل کرے. سیاہ چہرے والے دوزخیوں، حسین کو تم لوگوں نے کوفے بلایا تاکہ ان کے خون کا سودا کر سکو. آپ لوگ جانتے ہیں ابن مرجانہ کون ہے؟ ابن مرجانہ وہی پلید شخص ہے جس نے بصرہ میں ایک محلہ بنوایا اور اس میں فتح خراسان کی اسیر شدہ عورتوں سے زبردستی فحاشی کروائی. ابن مرجانہ وہ سفاق ہے جس نے عورتوں کے پیٹ کے بچوں پر بھی رحم نہیں کیا. خاموش کافر حربی، اپنی گردن نیچے جھکاؤ. اتنا سخی نہیں ہوں کہ تمہارا اپنے قتل میں بھی ساتھ دوں. کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ امیر کس بارے میں سوچ رہے ہیں؟ مختار کی موت. جسارت نہ ہو تو عرض کروں کہ جتنا کم خون بہے گا حکومت کی بقا اتنی ہی بڑھ جائے گی. خدا گواہ ہے کہ میں بھی مختار کے زندہ رہنے سے بہت ناخوش ہوں، مگر اسے مارنے کو فی الحال خلاف مصلحت سمجھتا ہوں. مختار اور ہانی جیسوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس نے اور اس کے ساتھیوں نے سخت دنوں سے مقابلے کی مشقیں کر رکھی ہیں. میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اسے مارنے میں جلدی مت کیجیے. اے ابن سعد، مختار کو یا تو ہمارے ساتھ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. کوئی تیسری راہ تو موجود نہیں ہے نا؟ بات چیت سے معاملہ حل کیا جا سکتا ہے. اسے تسلیم ہونے پہ مجبور کر دیں. اگر نہ مانے تو؟ تسلیم نہ ہو تو اسے مار دیں. موت ایک بار کی ہے اور زندگی بھی. اگر مختار کے مرنے سے کوئی واقعہ رونما ہونا ہے تو بہتر ہے ابھی رونما ہو جائے. کوئی شک نہیں کہ امیر کی سمجھداری ہر خاص و عام کی زبان پر ہے.
पिछले हंगामे में अमीर की ज़गावत ने मुझे हैरान कर दिया था। मुझे यकीन है अमीर के आप मुख्तार से निमटने के तमाम हरबों से वाकिफ हैं। यकीनन आपने कूफा की हुकूमत के लिए कोई ना कोई फिक्र कर रखी होगी। हाय दुख है कूफियों की कब्र पर, खुदा लानत करे इन कच्चे कान वाले लोगों पर। खुद खुदा भी मैदान में उतर आए। खुदाए मोहम्मद गवाह है, ये बेगैरत लोग जरूर खयानत करेंगे। भतीजे, इस जमात को जब तक टुकड़े टुकड़े न कर दो, इनके शर को खत्म नहीं किया जा सकता। गीदड़ को कभी इंसान नहीं बनाया जा सकता। अबू इसहाक, खून मुस्लिम ने हमारी गैरत को मजीद ललकारा है। इंतकाम की प्यास में हम जल रहे हैं। हमारा साथ दोगे तुम्हारी रकाब में कूफे को अशिया का कब्रिस्तान बना दें। किस बात से मुंह फेरे हुए बैठे हुए हो अबू इसहाक? तुम्हें याद है ना, जब हम कूफियों की बेवफाई के बारे में जदल कर रहे थे तो तुमने मुझसे चाहा कि दिल से बैत करूं और कूफियों से किसी किस्म की उम्मीद वाबस्ता ना करूं। कूफियों ने हमारे साथ खयानत की, ये कोई नई बात तो नहीं है। अपने दिल की खबर लो कि अर्श की तरफ परवाज के शौक में बालू पर मार रहा है। उठो ताकि हम खून के दरिया में नहाएं। बकौल तुम्हारे हम वही जमलो सिफैन और नहरवान के शेर हैं। तुमने मेरे मुर्दा दिल की आग को दोबारा भड़का दिया है। तुम बैठ जाओगे तो ये आग दोबारा थम जाएगी। उठो मुख्तार, जनाब मुस्लिम के दाग ने हमें मजीद जर्री बना दिया है। उठो मुख्तार, अपने बाप अबू उबैद की तरह एक नारा लगाओ ताकि कूफे के तमाम गीदड़ नुमा लोगों के दिल बैठ जाए। मेरी जान की कसम है, हमारी हिकमत को रायगा मत जाने दो। ऐ वो जिसकी गैरत पर मैं सदके जाऊं। अमन के अलम उठाओ। हंगामा आराई करने वालों में से जो भी तौबा करे और तुम्हारे परचम तले आ जाए उसे अमान देना। और हाँ, अपने कुछ कारआमद लोगों की फौज लेकर मुख्तार के मुकाबले पर जाओ और उन पर राह बंद कर दो। कोशिश करना कि मुख्तार और उसके साथियों को सर तस्लीम खम करने पर मजबूर कर दो। अगर वो अमान चाहें तो उन्हें अमान दे देना। जसारत कर रहा हूं अमीर, मुझे तो मुख्तार को अमान देने से माफ रखिए। मैं लड़ना बेहतर समझता हूं। क्यों? मैं मुख्तार को अमान का वादा देकर उस पर अमल ना करूं, ये मुझसे ना होगा। अजीब है। ठीक है, वादा करो और अमल करो। मुस्लिम से भी वादा किया गया था, मगर आपने उसकी लाज न रखी। मैंने मुस्लिम से अमान देने का वादा नहीं किया था। इब्ने अशस ने अपनी तरफ से वादा कर लिया था, मैंने नहीं। और फिर क्या तुम अपने आप को इब्ने अशस से मिला रहे हो? हाँ, तुम्हारी कद्र कीमत मेरी नजर में इब्ने अशस से 100 गुना ज्यादा है। तुम्हारी बात मेरी बात है, शक को दिल में जगह मत दो। जाओ, मुख्तार तुम्हारा मुंतजिर है। अगर तस्लीम ना हो तो उसे कत्ल कर दो।
मुझे रुख्सत दो अबू इसहाक, मैं मैदान में जाना चाहता हूँ। बिन कामिल दुश्मन ने सुलह का परचम लहराया हुआ है, क्या तुम नहीं देख रहे? इनका लड़ने का इरादा नहीं है। अगर उनका लड़ने का इरादा ना हो तो तुम नहीं लड़ोगे? किस लिए लड़ें जब दुश्मन लड़ना नहीं चाहता तो? मुख्तार, अपनी और अपने साथियों की जान खतरे में मत डालो। ये लश्कर जो तुम देख रहे हो, उनकी तादाद इतनी है कि मैं उसे गिनने की कुदरत नहीं रखता था। यूं समझो कि जितने भी तलवारबाज थे कूफे में, वो इब्ने साद के लश्कर में शामिल हो गए। अगर खुदकुशी करना चाहते हो तुम लोग तो तलवार उठाओ, मेरी सलाह चाहो तो सरे तस्लीम खम कर दो और अपना और अपने साथियों का खून खरीद लो। तुम्हारी तलवार गिलाफ में रहे ये बेहतर है, या गनीमत के तौर पर उमर साद की कमर पर बांधी जाए। यकीनन कूफा की खबरें तो सुनी होंगी तुमने। मुख्तसरन अर्ज करता हूँ, कूफियों ने मुस्लिम को पीठ दिखा दी। मुस्लिम और हानी दोनों मारे गए। मिज़हजियों की एक आवाज भी ना निकली। तमाम कूफी इब्ने ज़ियाद के परचम तले इस्लाम का नारा लगा रहे हैं और हुसैन इब्ने अली को हक पर नहीं समझते। अब सिर्फ तुम रह गए हो और ये कलील सी तादाद। अब तुम्हारी मर्जी। तुमने एक बार जवानी में मेरी जान बचाई थी, मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। अगर हथियार डाल दो तो शरीफाना वादा करता हूँ, अमीर के हुजूर तुम्हारी बख्शिश करा दूंगा और तुम्हारे लिए अमान मांगूंगा। मुझे इजाजत दो कि इस तन से इसका सर जुदा कर दूं अबू इसहाक। ये शख्स हमारी शराफत खरीदने यहाँ आया है। इन लोगों की बात मानना सरासर खता है। इन लोगों ने जनाब मुस्लिम को भी अमान दी थी। इनका सफेद झंडा सिर्फ एक चाल है अबू इसहाक। अगर रुखसत दे दो तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा इस मलून को। इनके पीछे कोई हुजूम नहीं, ये झूठ है कि ये लोग उमर साद के लश्कर के हमरा हैं। ये कुत्ता कौन है अबू इसहाक? इसने अपने नाम और कबीले की कोई बात नहीं की। भाइयों, जब तक दुश्मन की कमजोरी और कुव्वत को न पहचान लो, तलवार पर हाथ रखना खता है। मैंने इश्क और अक्ल के खिलाफ तलवार नहीं उठाई। हारने के लिए मैदान में नहीं आया हूं। मैं जीतने की फिक्र करता हूं, हार की नहीं। तो अपने गुस्से को लगाम दीजिए, अपने आप को संभालिए और मेरी बातों को गौर से सुनिए। आज मामला दुश्मन के हाथ में है। जहां जीत हमारी थी, हमारे साथियों ने दलीलें तराशना शुरू कर दी और जंग से परहेज करके उसे मकरूह कह दिया और इतना वक्त जाया किया कि दुश्मन को हाथ पांव चलाने का मौका मिल गया और उसने अपने साथी काफी तादाद में बना लिए और हम पर सबकत ले गए। दुश्मन हमारे तस्लीम हो जाने का ख्वाह नहीं है, उसे ये खुशी है कि हम लड़ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि सफेद झंडा उठाया हुआ है और सुलह की बातें कर रहे हैं, ये हमसे किसी खौफ की बिना पर नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि इनके पास कोई ऐसी दलील हो हमारे खिलाफ जिससे अवाम का मुंह बंद हो जाए। बखुदा कसम मैं न मौत से डर रहा हूं और न इस बात से कि हम तादाद में कम हैं और दुश्मन ज्यादा। मेरा डर हमारे गम और गुस्से के मर जाने के बारे में है, वो गम और गुस्सा जो हमारे दिलों में छुपा हुआ है। दुश्मन हमें मार दे तो उसने हमारे गम और गुस्से को मारा है, और हमारा गम और गुस्सा मारा जाए तो दुश्मन किससे डरेगा? तो फिर अपने कीन और गम और गुस्से को अपने साथ अपने कबीलों में ले जाओ और उस दिन का इंतजार करो जिस दिन हम इस अमल का बदला दुश्मन से लेंगे और गलबे के लिए मैदान में आए, न कि शिकस्त के।
ابو اسحاق تم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہو؟ تو پھر اپنے فدائیوں کا سر قلم کر دو. کیان بن کامل، اتنے سال جو ہم نے خون دل پیا ہے وہ مت بھولنا. یہ فیصلہ ہرگز نہیں کیا تھا ہم نے کہ غیر برابر جنگ میں اپنی آرزوؤں کو اپنے جذبات کے آگے قربان کرتے ہیں. اتنا حوصلہ نہیں ہے میرے پاس مختار. تم لوگوں کا فیصلہ نہیں ہوا اب تک؟ بہت جلدی ہے بن حریث. میرے ہزار طرح کے مشغلے مختار. تمہاری طرح فارغ نہیں ہوں کہ جب دیکھو مکھی کے چھتے میں انگلی ماروں. کیا ہوا؟ اپنی جان کا سودا کرتے ہو یا تسلیم کرتے ہو؟ تم اور میری جان لوگے؟ ہاں، میں کیوں اپنے آپ کو بدنام کروں؟ عمر سعد جیسا ایک ملک الموت میرے پیچھے باری لگائے کھڑا ہے. میں صرف اپنا قرض چکانا چاہتا تھا، صرف یہی. میرے ساتھیوں کی بھی جان کی ضمانت دیتے ہو؟ تمہارے ساتھیوں سے کیا لینا دینا؟ جھگڑا تمہارے ساتھ ہے. جب تم ہی ان لوگوں کو جوش دلانے کے لیے نہیں ہوگے تو یہ اپنی بھیڑ بکریوں کے پیچھے چلے جائیں گے. تو مختار ثقافی آپ ہیں؟ تم بالکل برحق تھے ابن سعد. مختار کی ہیبت کچھ کم نہیں ہے. حق بجانب تھے کہ اس کی آنکھوں سے خوف کھاؤ. یہ آنکھیں تلواروں اور برچھیوں سے بھری ہوئی ہیں. میں نے قسم کھائی ہے کہ جس چیز سے بھی ڈروں اسے ختم کر دوں گا. خدا کی قسم، بن حریث کی شفاعت نہ ہوتی تو تمہارا خون بہا دیتا. اس کی جان تمہیں بخش دی بن حریث. اسے شیر نر سے ایسا گیدڑ بناؤں گا کہ اپنے سائے سے بھی وحشت کرے. اسے قید کر دو. اے ابن سعد. جی امیر. جب تک حسین کوفے کی راہ میں ہے میں کوفے کی جانب سے مطمئن نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے کہ کوفہ کے لشکر کو رے پر غلبے کے لیے تیار کریں، مکے کی طرف جاؤ اور حسین اور اس کے ساتھیوں کا راستہ روک دو. حکومت رے اس بیعت کے بدلے میں ہے جو تم حسین سے لوگے.
इस शख्स को जानते हो? जी सरदार, मुख्तार सखफी है। शाबाश। याद रहे कि मैंने इस मर्द दिलावर सखफी को शरीफाना कौल दिया है कि इसकी जान की जमानत दूं। मेरी शहरग भी काट दी जाए, मैं जबान से नहीं फिरूंगा। अपनी ग़िज़ा खिलाओगे इसे, समझे? कोई भी पैगाम किसी की भी जानिब से मिले जो इसकी जान को खतरे में डाल दे तो मैं तुमसे क़िसास लूंगा। समझ आई? जी सरदार। और तुम मुख्तार, ये जान लो कि अब तक कोई भी इस काल कोठरी से जिंदा बाहर नहीं आया। लिहाजा अपना ख्याल रखना। गफलत बरतोगे तो खुद अपनी जान के जिम्मेदार होगे। जाओ। खुदाया मेरी मदद कर, खुदाया मेरी मदद कर। जंजीर में जकड़े हुए शेरों के मोहल्ले में खुशामदीद।